Hello student, this is Somena and today we start with the modern distribution chapter, unit number 4, Introduction. The moment distribution method was first introduced by Professor Hardy Cross of Illinois University and 1930. This method belongs to approximate methods of analysis. This method provides a convenient means of analyzing the statistically indeterminate bins and rigid frames. It is especially useful when the degree of redundancy is large. That means आपके पास जो भी फॉर एग्जांपल आपके पास 4 अननोन है, 2 इक्वेशन है, ओके तो आप सिंपल मेथड्स यूज़ करते हो पर बहुत सारे अननोन है और इक्वेशन कम है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ रिडंडेंसी इज लार्ज, तभी ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो. And other methods. Slope deflection method entails the solution of a large number of simultaneous equations, okay, which becomes very tedious, okay, at the moment. स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी है जो आप यूज़ कर सकते हो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग और वेरी टीडियस है. दैट मीन्स बहुत टाइम लेती है, बहुत देरी लगती है सॉल्यूशन लेने में. द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डज नॉट इन्वॉल्व सॉल्विंग एनी इक्वेशंस. This method is very simple and gives the results with the sufficient accuracy. In the moment distribution method, the numerical solution is performed in a tabular form. This is basically an iterative process. The procedure in general involves artificially retaining the temporary all the joints against the rotation and writing down the fixed and movements. Okay, in general procedure in general involves artificially restraining the temporarily all the joints, okay, joints against rotation and writing down the fixed and movements for all the members. The joints are then released one by one. That means आपको क्या करना है, जब सभी जो भी सपोर्ट्स है और जो भी जॉइंट्स है उसको फिक्स रखना है, ओके, उसको रिस्ट्रेन रखना है और धीरे धीरे उसको रिलीज करके बारी बारी उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट करना है. At each release joint, the unbalanced moments are distributed to all the ends of the members meeting at that point. A certain fraction of this distributed member are, that means for example एक एंड पे फिक्स सपोर्ट है, एक एंड पे हिंज सपोर्ट है, तो उसकी जो भी मोमेंट्स आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूट रिलीज जॉइंट जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन है, ओके, या जो भी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ओके, दैट जो भी मोमेंट है उसको उसके फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जिसको बोलते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी रियल मोमेंट होगी ना वो मिलेगी. To all the joints of the members meeting at that joint, a certain fraction of this distributed moment are carried out over the far end of the member, and the release joint is again restrained temporarily before proceeding to the next joint. That means for example आपके पास एक बीम है, उसमें बारी बारी जॉइंट आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जॉइंट है उसको रिस्ट्रेंट रखो, ओके, सेकेंड जॉइंट के रिलीज रखो और वहाँ से मोमेंट फाइंड आउट करो, देन नेक्स्ट जॉइंट को रिस्ट्रेंट रखो, फार एंड जो भी है जो भी आपके पास जॉइंट है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जॉइंट पकड़ते जाओ, ओके, और एक बारी बारी वो जॉइंट्स को पकड़ते जाओ और फार एंड जो भी जॉइंट है, ओके, फार एंड जॉइंट है उसको हमें क्या करना है, रिलीज करना है, उसके साथ फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है और आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है वो फाइंड आउट करना है, ओके. तो प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट जॉइंट द सेम सेट ऑफ ऑपरेशन आर कैरिड आउट. वो एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा पता चलेगा. द सेम सेट ऑफ ऑपरेशन आर कैरिड आउट एट ईच जॉइंट टिल द joints are completed. This completes one cycle of the operation. The process is repeated for a number of the cycles till the value obtained are within the desired accuracy. अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे important terms, that is stiffness K. The moment required to produce a unit rotation at the simply supported end of the member is called the stiffness. That means यहाँ पे रोटेशन यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो मूवमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ओके,
सिंपली सपोर्टेड एंड ऑफ द मेंबर, यहाँ पे सिंपली सपोर्ट है, वहाँ पे यूनिट रोटेशन क्या बोलते हैं, यूनिट रोटेशन जो है वो वो सपोर्ट का यूनिट रोटेशन हो, उसके लिए जो भी हमें मोमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस. At the end of a member is called the stiffness or absolute stiffness. Stiffness is equal to moment divided by rotation. Stiffness is K is equal to M divided by theta. Here stiffness is equal to force divided by deformation. Therefore K is equal to P divided by delta. But theta is equal to 1, यूनिटी है, यूनिट रोटेशन हमें प्रोवाइड करना है, तो K is equal to वैल्यू क्या आएगा, M आएगा. Then the proposition 1 far and fixed, that means far and fixed है तो वहाँ पे कितना मोमेंट रहेगा, the moment required to rotate the near end of the prismatic beam through a unit angle. Okay, the moment required to rotate, मोमेंट हमें रिक्वायर है to rotate the near end of the prismatic beam through a unit angle विदाउट ट्रांसलेशन द फार एंड बीइंग फिक्स्ड, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा बट यहाँ पे होगा. ओके, तो विदाउट ट्रांसलेशन हमें मोमेंट प्रोवाइड करनी है, रोटेशन प्रोवाइड करना है, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ द प्रिज्मेटिक. ओके, तो यहाँ पे रोटेशन देना है, रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें मोमेंट प्रोवाइड करनी है. ओके, और फिक्स्ड दूसरा जो एंड है वो फिक्स्ड है, तो उसके लिए हमें क्या फार्मूला मिलेंगी, और यहाँ से जो भी रोटेशन प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर फिक्स एंड पे नहीं होगा. ओके, तो m इज इक्वल टू k 4ei/l, द मोमेंट प्रोड्यूस एट द फार एंड विल बी इक्वल टू मोमेंट प्रोड्यूस होगी बट रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. तो यहाँ पे फार एंड पे रोटेशन क्या होगा 2ei/l, और नियर एंड है वहाँ पे रोटेशन कितना होगा 4ei/l. अभी फार एंड सिंपल, दैट मीन्स फार एंड यानी ये और नियर एंड यानी ए. तो द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ द प्रिज्मेटिक बीम थ्रू ए यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन द फार एंड बीइंग सिंपल इट इज गिवन बाय, दैट मीन्स यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए मोमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, तो मोमेंट यहाँ पे हमने 3ei/l किया है तो बी पे मोमेंट नहीं मिलेगा, दैट इज 0. ओके, then carry over moment. In case of the beam with far and fixed, if moment is applied at the near end, the m moment is produced at the far end and m dash moment is called the carry over moment. In case of the beam with far and fixed, far end कैसा है, fixed है. If m moment is applied at the near end, फार एंड फिक्स्ड है, आप मोमेंट नियर एंड जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो. ओके, तो एम डैश मोमेंट इज प्रोड्यूस एट द, एम डैश मोमेंट कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, फार एंड पे प्रोड्यूस होगी. दिस एम डैश मोमेंट इज कॉल्ड द कैरी ओवर मोमेंट. तो एम इज इक्वल टू 4 फॉर ए बीम विथ फार एंड फिक्स, दैट मीन्स फार एंड फिक्स है, तो वहाँ पे मोमेंट क्या प्रोवाइड होगी, एम इज इक्वल टू, हमने देखा ना कि m कितना है 4ei/l है, तो m डैश कितना आएगा 2ei/l. वन एंड इज जो नियर एंड है वो सिंपली सपोर्ट है और फार एंड है वो फिक्स है. दूसरे में क्या है, दूसरे में दोनों एंड जो भी है दोनों सपोर्ट है, दैट इज सिंपली सपोर्ट है. तो यहाँ पे मोमेंट 3i/l है तो m डैश कितना आएगा 0. when far end is simple, carry over moment is 0. Okay, moment applied at the near end, m is equal to carry over moment, that is then carry over factor. Carry over factor is equal to moment produced at the carry over moment or carry over factor is equal to moment produced at the far end divided by moment applied at the near end. So m dash divided by m, when carry over factor is equal to moment produced at far end divided by moment applied at near end. M dash divided by m, when far end of the beam is fixed, carry over factor is equal to 2ei/l, 4ei/l हमारे पास formulas है, is equal to 1/2, that is 0.5. Distribution factor,
Consider a joint in a structure when two or more members meet. If an external moment m is applied to such a joint, okay, यहाँ पे moment हमने apply किया है. The joint undergoes a rotation theta as shown in the figure. Since all the members meeting at this joint undergo the same rotation theta, that means यहाँ सब पे rotation आएगा. The applied moment m is distributed to each end of the member according to the relative stiffness values. Okay, तो उसकी वजह से उसमें अलग अलग जो भी हमने मोमेंट अप्लाई किया है उसकी वजह से द अप्लाइड मोमेंट m इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग एंड पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगी. मोमेंट जो भी ओरिजिनल है उसके हिसाब से अलग अलग, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स है तो उस पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगी. ओके, according to the relative stiffness. The factor by which the applied moment is distributed to the member is known as a distribution factor dF. Member OA is equal to K1 is equal to 4 EI1 by L1. Member OB, OA is 4 EI by L1. Then member OB is equal to 3 EI by 3 EL2 divided by L2. Okay, then member OC is equal to 4 EL3 divided by L3, and member OD is equal to 3 EI4 divided by L4. The total stiffness sigma K is equal to K1 plus K2 plus K3 plus K4, and distribution factor is equal to K divided by sigma K, that is stiffness of a member divided by sum of the stiffness. For member OA डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मेंबर OA के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है? K1 डिवाइड बाय सिग्मा के. मेंबर OB के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है? K2 डिवाइड बाय सिग्मा K2. मोमेंट शेयर्ड बाय OA, तो मोमेंट M1 इज इक्वल टू M इंटू K1 डिवाइड बाय सिग्मा A, M2 इज इक्वल टू M K2 डिवाइड बाय सिग्मा K. And for member OC, the distribution factor is equal to K3 divided by sigma K. Moment shared by OC is equal to M3 M K3 divided by sigma K. For member OD, distribution factor is equal to K4 divided by sigma K. Moment shared by OB is equal to M4 M into K4 divided by sigma K. Moment shared by any member is equal to moment into distribution factor. Fixed end moments. The moments induced at the end of the members due to the applied loads, considering the moment to be fixed, considering the member to be fixed at both the ends, are called the fixed end moments. फिक्स्ड एंड मोमेंट यानी क्या? द मोमेंट्स इंड्यूस एट द एंड ऑफ द मेंबर ड्यू टू द अप्लाइड लोड, जो भी लोड हम अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो भी मोमेंट्स लगती है. कंसिडरिंग द मेंबर टू बी फिक्स्ड, जो भी हमारे पास मेंबर्स है वो फिक्स्ड है एट बोथ द एंड्स, दैट मीन्स दो सपोर्ट्स फिक्स है. तो वहाँ पे जो भी फिक्स एंड मोमेंट मिलती है, जो भी मोमेंट मिलती है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, अनबैलेंस मोमेंट. The sum of the fixed end moment meeting at a joint which is initially clamped is not zero, and the difference between zero and sum of this moment is called the unbalanced moment. It is moment which is responsible to rotate the unclamped joint. कई बार क्या होता है, दोनों सपोर्ट पे मोमेंट इक्वल नहीं होती है. फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट है, वहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, दूसरी जगह पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है. ओके, और तो वो डिफरेंस ऑफ जॉइंट्स और डिफरेंस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, मोमेंट बैलेंस नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस मोमेंट. द सम ऑफ द फिक्स एंड मोमेंट्स मीटिंग एट ए जॉइंट विच इज इनिशियली क्लैम्प्ड इज नॉट जीरो. ओके, तो फिक्स एंड मोमेंट जीरो नहीं होती है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द जीरो एंड द सम ऑफ दिस मोमेंट्स इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द जीरो और सम ऑफ दिस मोमेंट, जो भी फिक्स एंड मोमेंट मिली है वो एक्चुअली ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो होनी चाहिए बट ज़ीरो नहीं है, तो दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस मोमेंट. इट इज मोमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द अनक्लैम्प्ड जॉइंट. डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट. द अनबैलेंस मोमेंट कॉज द जॉइंट टू रोटेट व्हेन इट इज रिलीज्ड, and the resistance to rotation will be provided from the member in proportion to their stiffness, and the resisting moment developed in the member are called the distributed moment.
जो भी हमारे पास अनबैलेंस मोमेंट है, ओके, कॉज द जॉइंट टू रोटेट, अनबैलेंस मोमेंट की वजह से क्या होगा, जो जॉइंट है वो रोटेट होने का ट्राई करेगा एंड उसको रेजिस्ट करने के लिए रेजिस्टेंस होगा, ओके, जिसकी वजह से वो रोटेट ना हो. द रेजिस्टेंस टू रोटेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द मेंबर इन प्रोपोर्शन टू दैट स्टिफनेस, स्टिफनेस के हिसाब से उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा जिसकी वजह से वो रोटेट ना हो, ओके. तो द रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप्ड इन द मेंबर, जो भी रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप होती है, ओके, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट. पूरा मेंबर यानी बीम बोल सकते हो आप. तो जो भी रोटेशन है वो रोटेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो भी मोमेंट प्रोवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट. रिलेटिव स्टिफनेस, when the several members meeting at a joint have different condition of support at their ends, it is always convenient to express the stiffness of the member in terms of a relative stiffness. We have seen that the absolute stiffness K of the prismatic member with far and fixed, that is 4 EI by L, और फार एंड सिंपल है तो 3 I by L. आपको याद रखना है कि मोमेंट एब्सोल्यूट स्टिफनेस ऑफ द प्रिज्म विद फार एंड, वी हैव सीन द एब्सोल्यूट स्टिफनेस के फॉर फार एंड फिक्स कितना है, 4 EI by L है, और फार एंड सिंपल है तो 3 I by L है. इफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट द जॉइंट आर द सेम मटेरियल एंड आर फिक्स एंड एट द फार एंड, द मटेरियल सेम है, ओके. If all the members meeting at a joint are of the same material, that means जो भी member joint पे इकट्ठा हो रहा है या एक joint पे मिल रहा है उसका material same है अलग अलग member का, ओके. तो उसमें with a far and fix same material and are fixed at the far end पे fix है, the stiffness of the each member relative to the other may be represented by 1 by L, okay. However, if some of the prismatic member meeting at the joints are freely supported at the other end, the relative stiffness may be taken equal to 3 by 4 I by L, okay. Since the absolute stiffness of the each member is 3 EI by L. साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है, क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेना है, पॉजिटिव. एंटी क्लॉकवाइज इसमें अलग है. सिंपली जो भी हमने किया था सिंपली सपोर्टेड बीम वाला, तो इसमें जो भी साइन कन्वेंशन दिया है उस तरह से लेना है. क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेना है, यहाँ पे दिखाया है. रोटेशन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव लेना है. देन सिंकिंग, तो फॉर एग्जाम्पल the settlement will be taken as positive the rotation the beam as whole in the clockwise direction. Rotation इस direction में हो रहा है, okay, that is positive. The settlement will be taken as negative the rotates the beam as a whole in the anti-clockwise direction. तो क्या आएगा आपका जो भी डिफ्लेक्शन है और सिंकिंग है और सेटलमेंट है दैट इज नेगेटिव. ये साइन कन्वेंशन आप ध्यान में रखना. देन फिक्स एंड मोमेंट्स, फिक्स एंड मोमेंट्स और वेरियस लोड केसेस आर शोन द बिलो. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेंट्रल पॉइंट लोड है, दोनों साइड फिक्स एंड है और टोटल लेंथ L है और सेंटर में लोड प्रोवाइड किया है, तो क्या मोमेंट मिलेगा इसका, MFAB इज इक्वल टू WL बाई 8 माइनस और MFBA इज इक्वल टू B2A और A2B, तो B2A कितना है प्लस WL बाई 8 है. देन अगेन UDL प्रोवाइड किया है, तो UDL प्रोवाइड किया है तो MFAB कितना है माइनस WL² बाई 12 और इसमें MFAB BA कितना आएगा प्लस WL² बाई 12. अगेन इसमें क्या है जो भी सेम डिस्टेंस पे लोड नहीं लिया है, दैट मीन्स सेंट्रल पॉइंट लोड नहीं है, ओके. जो भी डिस्टेंस पे लोड है वो अलग अलग डिस्टेंस पे ले रहा है. फ्रॉम A है और फ्रॉम B टू लोड का डिस्टेंस कितना है B है. तो MFBA इज इक्वल टू MFBA is equal to WAB square by L square, MFAB is equal to minus WAB square by L square और MFBA is equal to plus WAB square by L square, ओके. तो इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है जो फॉर्मूलाज है ना उस पे उसके बेस पे ही सब एग्जांपल्स आते हैं, तो आपको ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा तो ये आपको आएगा. देन नेक्स्ट फॉर UVL प्रोवाइड किया है, ओके. तो MFAB is equal to minus WL square by 12
और एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30। ये 20 है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20 और एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30। उसी तरह से ये केस है जिसमें बीच में मोमेंट प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला एम एफ ए बी इज इक्वल टू एम बी टू ए माइनस बी डिवाइड बाय एल स्क्वायर और एम एफ बी इज इक्वल टू प्लस एम ए टू बी माइनस ए डिवाइड बाय एल स्क्वायर। और उसी तरह से ये केस में थोड़े पोर्शन में आपको यू डी एल दिया है, तो क्या आएगा, एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 एल स्क्वायर 6 एल स्क्वायर माइनस 8 ए एल प्लस 3 ए स्क्वायर और एम एफ बी इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू ए क्यूब डिवाइड बाई 12 एल स्क्वायर 4 एल माइनस 3 ए। उसी तरह से 7 एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस 6 ई आई डेल्टा बाय एल स्क्वायर और एम एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस 6 ई आई डेल्टा बाय एल स्क्वायर, दोनों माइनस मोमेंट आएगा यहाँ पे। ओके, तो उसी तरह से रोटेशन का भी है, तो रोटेशन में भी आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा फॉर एम एफ ए बी इज इक्वल टू, ओके क्लॉकवाइज रोटेशन है इसीलिए प्लस, और ये क्या है जो भी है वो आपको मोमेंट इस डायरेक्शन में मिलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एम एफ ए बी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन इज ऑल्सो अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे माइनस इसीलिए है। इसमें क्या है, दोनों में क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगा, तो 4 ई आई थीटा ए बाई एल। ओके, तो रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा तो उस तरह से मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, तो एम एफ बी इज इक्वल टू ई आई थीटा ए बाई एल। तो अभी डिफ्लेक्शन थोड़ा नीचे है, सपोर्ट का है, सिंपल सपोर्ट है, तो एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस 2 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर और एम एफ बी इज इक्वल टू 0। Steps for moment distribution. Steps for moment distribution method. The moment distribution method may be summarized by the following steps. Find out the fixed and moments FEM for the each member. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स एंड मोमेंट्स फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द वेरियस मेंबर मीटिंग एट डिफरेंट जॉइंट्स फॉर फार एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, 1 आएगा फॉर फिक्स सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आएगा, 0, और फिक्स सपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या आएगा, 0 आएगा, और सिंपल सपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। प्रिपेयर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन विद द वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट्स द जॉइंट्स at each joint. Find out unbalanced moment and distribute them at the joint according to the distribution factor। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसके हिसाब के आपको मोमेंट, अनबैलेंस मोमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट दे आर बैलेंस, and this is so called the distribution 1। There is no unbalanced moment at any joint and cycle 1 is completed। The distribution moments are carried over to the other end of the member with the same sign, so called the carry over moment। That means एक जॉइंट पे से दूसरे जॉइंट पे आप ले रहे हो, ओके अदर एंड पे ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द कैरी ओवर मोमेंट। उसकी साइन जो भी है वो सेम ही साइन आपको लेनी है। द साइकिल्स में बी रिपीटेड डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी डिजायर्ड। द फाइनल मोमेंट्स में बी फाइंड आउट बाय समिंग ऑल द मोमेंट्स इन ईच कॉलम। ओके, तो आपको क्या करना है, फाइनल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, तो जो भी आपके पास मोमेंट्स मिली है उसका समेशन करो, ओके उसी कॉलम में, ओके कॉलम वाइज, दैट मीन्स फर्स्ट रो में ये मोमेंट आई, सेकेंड रो में ये मोमेंट आई वही कॉलम में, तो उसका समेशन करो तो आपको फाइनल मोमेंट मिलेगा। एट द इंटरमीडिएट जॉइंट्स द सम मोमेंट्स मस्ट बी 0 एज डिजायर्ड बाय द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इंटरमीडिएट जो भी जॉइंट है उस वहाँ पे सम ऑफ मोमेंट्स मस्ट बी 0, सम ऑफ मोमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 एज डिजायर्ड बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन एट द इंटरनल जॉइंट। ओके, तो हम थियरी आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके रिलेटेड। ओके, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओके, थैंक यू।